Good morning to everyone. So in today's lecture, I am going to start with the new chapter, which is underwriting of shares and debentures. Now, have you ever heard about underwriting? Underwriting commission, ये तुम लोग ने सुना होगा. Who is an underwriter? Underwriter may be an individual, partnership, or a company who enters an agreement where he or she agrees to subscribe, like to sell the shares to the public. लेकिन ये तो broker भी करता है. So what is the difference between underwriter and the broker? Underwriter सिर्फ ये एग्रीमेंट में एंटर नहीं करता कि वो शेयर्स को सेल करके देगा. वो क्या, उसका क्या एग्रीमेंट है कि he will sell the shares to the public, but in case he is not successful in selling the shares जितना उसने प्रॉमिस किया है, he himself will purchase those shares. मतलब this is the basic difference between underwriter and the broker. Broker only promises to sell the shares or debentures or securities, and then in exchange he gets a brokerage. इतना ही difference है. इतना है काम है broker का. But underwriter का क्या है कि he से underwrite, मतलब वो क्या बोलता है कि he promises to sell so many number of shares as per the contract. कितना number of shares उसको sell करना है. लेकिन अगर there is an under subscription का क्या situation है कि अगर 90 जितना शेयर्स कंपनी ऑफर करना चाहता है, अगर मिनिमम 90% का एप्लीकेशन नहीं आया तो कंपनी को सारे पैसे जो रिसीव हुआ है वो रिफंड करना पड़ेगा. तो कंपनी ने सपोज देयर इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर. व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल पब्लिक ऑफर? इफ द कंपनी इज कमिंग विद अ इशू ऑफ शेयर्स, initial means it is first time to the public, selling the shares to the public, it is known as IPO or initial public offer. तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को ये डर रहता है because they are coming, they are entering to sell the shares first time to the public, So there is one danger, there is one बोलते हैं ना, एक डर है कि सब क्या होगा अगर ये पूरा शेयर, if there is a situation of under subscription हुआ तो जितने लोगों ने अप्लाई किया पूरा एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा. तो कंपनी does not want that situation. So what they do, they appoint an underwriter. Underwriter may be an individual, may be a partnership concern, may be a company who promises to sell minimum shares which are required to carry forward with the issue, security issue. Now that may be shares, that may be debentures. तो उसके लिए किसको अपॉइंट करते हैं? अंडरराइटर को. जैसे मैंने बोला अगर 90% मिनिमम शेयर्स नहीं सेल हुआ तो क्या हो जाएगा? रिफंड करना पड़ेगा. तो इसलिए अगर अंडरराइटर पब्लिक को शेयर नहीं सेल कर पाता, इन दैट सिचुएशन द अंडरराइटर हिमसेल्फ हैव टू परचेज दैट डिफरेंट अमाउंट, डिफरेंट जो आ रहे, जितना डिफरेंस अमाउंट आ रहे उतना अमाउंट उसको खुद को सब्सक्राइब करना पड़ता है. दैट इज द वर्क responsibility of the underwriter. Now see, what does it means? It means underwriting. What does underwriting means? It is an agreement with
or without consideration. Now, what does the underwriter get in return? अंडरराइटर को अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है. सो अंडरराइटर को ये सब काम करने के पीछे क्या मकसद है? व्हाट इज द इंटेंशन? अंडरराइटर गेट्स अ कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन. सो with or without condition, so means an agreement. Underwriting क्या है? Underwriting means an agreement with or without condition. It may be conditional, it may be absolute. वो क्या है? We will see in the next slide. To subscribe to the securities of the body corporate. So who will issue share? Corporate ना, company. हाँ, पार्टनर शेयर इशू कर सकते हैं, शेयर इशू पार्टनर्स कर सकते हैं. शेयर कैपिटल कहाँ पे होता है? कंपनी में, पार्टनरशिप में नहीं होता. सो सब्सक्राइब टू द इश्यूज ऑफ द body corporate when the existing shareholders or such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. मतलब अगर पब्लिक को नहीं सेल कर पा रहे, if there is a under subscription, so उतने अमाउंट के लिए who comes into picture? The underwriter. He will have to subscribe for the different अमाउंट ऑफ शेयर. जितना डिफरेंस आ रहे, जितना कम अमाउंट आ रहे जो सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए, जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए शेयर्स, वो कौन अप्लाई करेगा? अंडरराइटर अप्लाई करेगा. सो इफ द क्यों कंपनी को क्या जरूरत है अंडरराइटर को अपॉइंट करने का? दैट इज देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. ये मैंने आपको बताया. व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए टू कैरी फॉरवर्ड विद द शेयर इशू, अगर उतना नहीं हुआ तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो रिफंड करना पड़ेगा. तो वो रिस्क है. तो वो रिस्क से बचने के लिए कंपनी क्या करती है? अंडरराइटर को अपॉइंट करती है. सो अंडरराइटर कौन हो सकता है वो भी मैंने बताया. Underwriter may be a individual, partnership or a company. So underwriter होने के लिए क्या होता है कि underwriting services have been traditionally provided by financial institutions. कौन underwriting service दे सकता है? Financial institutions, मतलब banks, brokers who are members of stock exchanges, brokers who are members of stock exchanges, merchant bankers, mutual funds and persons with adequate financial capacity. Now what do you mean by adequate financial capacity? अगर कंपनी मिनिमम शेयर्स नहीं सेल कर पाया तो ये पर अंडरराइटर को परचेज करना है तो उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी तो उसके पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो वो बैलेंस शेयर कैसे सब्सक्राइब करेगा? तो दे शुड हैव द एडिक्वेट फाइनेंशियल कैपेसिटी ना, वैसा उनके पास होना चाहिए. नेटवर्थ उनका उतना होना चाहिए कि दे आर एबल टू सब्सक्राइब फॉर द बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो ऐसे लोगों को ही अंडरराइटर अपॉइंट कर सकते हैं. तो सम ऑफ द एग्जांपल्स, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस दैट एक्ट एज अंडरराइटर्स आर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. ये सब एग्जांपल्स, दीस आर द प्रोमिनेंट अंडरराइटर्स. अंडरराइटिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस जो अंडरराइटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसका एग्जांपल्स क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आर सम ऑफ द examples of the prominent institutions which provide underwriting facility. So let us move to the next slide.
So underwriting commission. The next slide is on underwriting commission. तो underwriting commission का meaning मैंने already ये क्या है? What is this underwriting commission? This is an remuneration which is given to the underwriter. अंडरराइटर को जो उसका सर्विस के लिए बदले में मिलता है, इन रिटर्न जो उसका सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो रेम्यूनरेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन. सो द कंसिडरेशन payable to the underwriters for underwriting the issue of shares or debenture of the company is known as underwriting commission. तो क्यों मिलता है? ये जो रिटर्न में मिलता है, so that they जो शेयर इशू या डिबेंचर इशू जो वो लोग करते हैं, तो उसको सेल करने के लिए यहाँ पे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो उनको खुद को भी खरीदना पड़ता है, उनके ऊपर वो जिम्मेदारी बन जाती है. तो इसके बदले में इनको क्या मिलता है? इसके बदले में इनको मिलता है अंडरराइटिंग कमीशन. भले ये कुछ छोटा सा परसेंटेज है, बट नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ा है, तो उसके कंपैरिजन में crores of rupees हो जाता है. जॉइंट स्टॉक कंपनी हमें लगता है इट्स अ नॉमिनल परसेंटेज, बट उसको जो वैल्यू करते हैं देन इट्स अ बिग अमाउंट. गेटिंग इट? सो एज पर कंपनीज एक्ट 2030 क्या बोलता है? सेक्शन 46 of the Companies Act 2013 provides that the company may pay commission to any person in connection with the subscription or procurement. Procurement मतलब purchase or subscription of its securities, whether absolute or conditional. ये absolute क्या है, conditional क्या है? There is a type of undertaking जो हम वो मैं आगे के लेक्चर में आपको बता, आगे का मतलब स्लाइड में आई विल टेल यू वो क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, कंडीशनल क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द कमिंग स्लाइड. सो इसके लिए सी कितना पेमेंट करना चाहिए अंडरराइटिंग कमीशन का, तो वो कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि कमीशन कहाँ पे ऑथराइज होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. यू ऑल हैव हर्ड अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. उसमें ये मेंशन होता है कि अंडरराइटर को कितना कमीशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, दैट इज गिवन देयर. तो उसके हिसाब से कंपनीज एक्ट बोलता है कि आप वो फॉलो कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या तो द रेट ऑफ कमीशन paid or agreed to be paid shall not exceed in case of shares 5%. case of shares परसेंटेज किसके ऊपर नहीं हो सकता, किसके ऊपर नहीं हो सकता? 5% of the price at which the shares are issued. कितना? 5%, या आर्टिकल्स में जो दिया हुआ है दोनों के कंपैरिजन में जो कम होगा वो, या तो 5% या तो जो आर्टिकल्स में है उन दोनों से लीस्ट कम वाला. एंड सी विच एंड और जो रेट ऑथराइज हमारा आर्टिकल्स में मेंशन है उसमें से दोनों में से 5%, आर्टिकल में 2.5% दिया है तो कम, आर्टिकल में 2.5%. देखो हमें कौन सा वाला फॉलो करना है? जो कम है. आर्टिकल्स में 5.5 है, बट ये तो 5% है, तो हमें कम वाला करना है. क्या करना है? जो कम है. और डिबेंचर्स के लिए क्या बोलते हैं? इट शुड नॉट एक्सीड 2.5%. कितना? 2.5%. और कंपनी के आर्टिकल्स में जो परसेंटेज मेंशन है दोनों में से लेसर जो वैल्यू है वो 2.5% of the price at which the debentures are issued, or the percentage which is mentioned in the articles, whichever is
लेस। समझा? शेयर्स के लिए क्या है? 5% ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर्स एट विच इट इज इशूड, और आर्टिकल्स में जो अमाउंट परसेंटेज मेंशन है दोनों में से कम वाला। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें से तुम लोगों को सही आंसर सेलेक्ट करना है। आर्टिकल्स में जो परसेंटेज मेंशन है शेयर्स के लिए, या तो 5% ऑफ द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर इशूड, दोनों में से कम वाला। और डिबेंचर्स का क्या है? 2.5% at which the debentures are issued, or the price which is mentioned in the articles, whichever is less. See, and उसके अलावा according to SEBI और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये लोग क्या बोलते हैं कि इक्विटी शेयर्स के लिए परसेंटेज दिया है वो लोगों ने। क्या पता है? इक्विटी, सेबी ने भी एक परसेंटेज दिया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सेबी, इन्होंने भी एक परसेंटेज दिया अंडर राइटिंग कमीशन के लिए। शेयर्स के लिए बोला है 2.5%। क्या बोला है? शेयर्स के लिए बोला है 2.5% का कमीशन मिलेगा। दो है, एक तो है जितना यहाँ पे ना, जब अंडर राइटिंग कमीशन में दो पार्ट्स होते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन में देयर आर टू पार्ट्स, वन नंबर ऑफ शेयर्स विच आर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। अंडर राइटर क्या करता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन गारंटी करता है कि इतना शेयर्स में आपका सेल करके दूंगा। अगर सेल नहीं हुआ तो अंडर राइटर हिमसेल्फ विल परचेज। तो पब्लिक ने भी कुछ तो शेयर्स परचेज किया होगा। Who is the underwriter? Who guarantees minimum subscription of shares? But शेयर जो सब्सक्राइब करते, पब्लिक भी सब्सक्राइब करते। जब आईपीओ का मैसेज आता है, आजकल तो आप देखोगे बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होता है अगर कोई भी कंपनी आईपीओ के साथ आने वाली है। सो मेनी आईपीओस, अर्लियर आईपीओस में जो शेयर्स खरीदते थे तो वो लोग जिनको, और सबको नहीं इशू होता है। That is, when there is a over subscription, in that case SEBI executive is SEBI का नॉमिनी डिसाइड करता है किसको कितना शेयर्स देना चाहिए। एंड बहुत लकी होते हैं तो आपको आईपीओ में शेयर्स मिलता है। एंड उसके बाद जब आईपीओ लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो जिसको आईपीओ में शेयर्स मिला है उनको तो बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है। और जब वो लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में तो क्या होता है, आपको अभी वन वेरी फेमस एग्जांपल वो जोमेटो। जब जोमेटो का शेयर्स रिसेंटली लिस्ट हुआ था तो बहुत लाइक आई थिंक 85 रुपीज में आईपीओ में मिला था। एंड जब लिस्ट हुआ तो 115 रुपीज में आया था। एंड उसके बाद जिनको आईपीओ में मिल गया था उनको तो बहुत फायदा हुआ था, बट बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन इसके बाद अब रिसेंटली जितने भी आईपीओ सारे, पेटीएम इज अ वेरी जब पेटीएम आईपीओ के साथ आया अभी रिसेंटली, जितने लोगों को आईपीओ में मिला वो लोग रो रहे। जितने लोगों को आईपीओ में शेयर्स मिला दे लिटरली क्राइंग, बिकॉज इतने उन जो अभी जो प्राइस है शेयर्स का, उनको आई थिंक 6 शेयर्स के लिए आईपीओ था एंड अराउंड आई थिंक कुछ तो 2000 रुपीस का एक शेयर। अभी रिसेंटली 950 ये रुपीस में शेयर्स मार्केट में वैल्यू चल रहे। तो इसका मतलब कि जिनको मिला है वो लोग एकदम लॉस में। एंड दिस ट्रेंड स्टार्टेड विद ग्लेनमार्क जीएलएस। जोमेटो के बाद जब जीएलएस का शेयर आया मार्केट में तो 720 का एक शेयर था जिनको मिला। उसके बाद आई थिंक 1000 रुपीस का प्रॉफिट के ऊपर वो शेयर्स गया ही नहीं। कुछ 20 शेयर्स मिला था आईपीओ में एक यूनिट में। तो दैट इज मतलब आईपीओ का पहले जितने भी लोग अप्लाई करते थे उनको हमेशा प्रॉफिट में रहते थे, पर जैसे ज्यादा लोग इसके तरफ आए तो नाउ वो मार्केट में आईपीओ में भी इन्वेस्ट करना मतलब रिस्की है। So here why I am talking about IPO is because in this chapter we are talking about IPO, initial public offer. So who is hired?
अंडरराइटर जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए गारंटी करता है, अगर उतना शेयर्स नहीं सेल कर पाया तो वो खुद खरीद लेता है, बिकॉज अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है सबका पैसा वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को। इसलिए अंडरराइटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इधर, करेक्ट। इसलिए मैंने बोला अंडरराइटर अगर आप बनते हो तो आपका नेटवर्क भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप जितना कम हुआ उतना शेयर्स आप खुद से खरीद सको, राइट। इट मे बी अ इंडिविजुअल, इट मे बी अ पार्टनरशिप, इट मे बी अ कंपनी। सो हियर मैंने जैसे बताया सेबी जब सेबी का जो परसेंटेज का स्लैब है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सेबी का जो परसेंटेज का स्लैब है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन कैटेगरी इज द पब्लिक, जितना शेयर्स या जितना डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स किसने परचेज किया, पब्लिक ने, उसके लिए एक परसेंटेज है, स्लैब है। और दूसरा the amount of shares, unit of shares which is devolved on the underwriter। devolved मतलब क्या, उसके ऊपर हिंदी का वर्ड बोला तो उसके ऊपर थोपा गया है कि उसको इतना शेयर्स खरीदना पड़ेगा, कंपल्शन है, बिकॉज ही इज एक्टिंग एज द अंडरराइटर। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाया तो उसको उतना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना पड़ेगा, राइट। सो इसके लिए क्या है, इक्विटी शेयर्स अगर है तो जो डिवॉल्व होता है अंडरराइटर के ऊपर, मतलब जितना पब्लिक नहीं परचेज कर पाती है वो बैलेंस अमाउंट जो अंडरराइटर परचेज करता है उसके लिए भी 2.5% कमीशन है। और जितना पब्लिक ने परचेज किया, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, उसके ऊपर भी सेबी का स्लैब इज 2.5%। सेबी का स्लैब कितना है, 2.5%। For preference shares and debentures, for दो कैटेगरी ऑफ शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स का परसेंटेज सेम है 2.5% एज पर सेबी, एंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स द परसेंटेज और डिबेंचर्स द परसेंटेज इज अप टू, अगर इशू 5 लाख तक का है, अगर इशू कितने तक का है, 5 लाख तक का है, तो डिवॉल्व के ऊपर 2.5% कमीशन मिलेगा अंडरराइटर को, और पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया उसके ऊपर 1.5% का कमीशन। समझा, यहाँ पे डिफरेंट है स्लैब। जितना अंडरराइटर ने के ऊपर डिवॉल्व हुआ, अगर इशू 5 लाख तक का है तो अंडरराइटर के ऊपर, जो अंडरराइटर ने जो परचेज किया उसके ऊपर 2.5% एंड पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसके ऊपर 1.5%। गेटिंग माय पॉइंट। 2.5 अंडरराइटर ने जो खरीदा, 1.5 पब्लिक ने जो खरीदा। अगर इशू 5 लाख के ऊपर है, अगर इशू 5 लाख के ऊपर है तो अंडरराइटर ने जो खरीदा उस पर 2%, अंडरराइटर ने जो खरीदा उसके ऊपर 2% का कमीशन, और जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसके ऊपर 1% का कमीशन। कितना, 1% का कमीशन। सो द मैक्सिमम underwriting commission is 2.5%, though the Companies Act allows 5%। जो मैक्सिमम अंडरराइटिंग कमीशन है ना वो एक्चुअली कितना है, 2.5%, बट हमने डिस्कस किया कंपनीज एक्ट 5% भी अलाउ करता है, बट नॉर्मली मैक्सिमम कितना है, 2.5, बट कंपनीज एक्ट इवन 5% भी अलाउ करता है। सेबी का जो है वो 2.5 के ऊपर नहीं कमीशन जो मिलेगा। एंड देन लास्टली आज का लेक्चर ये पॉइंट के बाद वी विल एंड, दैट इज कंप्यूटेशन। लास्ट क्या है, कंप्यूटेशन। नो अंडरराइटिंग कमीशन is payable on the shares that are taken up by the promoters, employees, directors, business associates। मतलब जो शेयर्स कंपनी ने के प्रमोटर्स ने खरीदा है, बिकॉज प्रमोटर्स को भी कुछ परसेंटेज शेयर्स मिलता है,
राइट, उसके ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन नहीं मिलेगा। एम्प्लॉइज ने जो शेयर्स खरीदा है उसके ऊपर नहीं मिलेगा। डायरेक्टर्स, बिजनेस एसोसिएट्स ने जो शेयर्स खरीदा उसके ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन नहीं मिलेगा। एंड कमीशन इज पेएबल ऑन द होल इशू अंडरटेकन irrespective of the fact that whole of the issue is taken up by the public। अगर पब्लिक ने भी पूरा खरीदा है तो भी जो परसेंटेज ऑफ कमीशन पब्लिक के लिए मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही कमीशन। राइट, ऐसा नहीं कि उस अंडर राइटर के ऊपर डिवॉल्व हुआ तो उसके ऊपर ही कमीशन मिलेगा, दोनों के ऊपर मिलेगा। पब्लिक ने जो लिया उसके ऊपर भी एंड जो अंडर राइटर के ऊपर डिवॉल्व हुआ उसके ऊपर भी। नो डोंट आस्क मी व्हाट इज डिवॉल्व। डिवॉल्व मतलब क्या, जो उसके ऊपर जबरदस्ती का शेयर्स आ जाते हैं अंडर राइटर के ऊपर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पब्लिक से नहीं हुआ तो बैलेंस अंडर राइटर को खरीदना पड़ता है, तो वो जो खरीदता है शेयर्स उसको बोलते हैं devolved, the shares which are devolved on the underwriters to purchase। Getting my point? With this I end today's lecture. Remaining things we will discuss in the next lecture. Thank you very much everyone.